Hi investors, welcome to SOIC. So in today's business analysis, we'll be talking about a company that is transforming from a semi-commodity player to a branded player. The name of the business is APL Apollo Steel Tubes, and along with this company, we'll be also analyzing Apollo Trichot in the second part of this business analysis. तो हमने इस business analysis को 8 parts में divide करा है. In the first part of the business analysis, we'll be talking about a mental model. इस mental model में हम बात करेंगे law of inversion की. In the second part of the business analysis, we'll be discussing the history of APL Apollo, कि APL Apollo की history क्या है. Third part में हम बात करेंगे कि steel tubes क्या है, steel tubes की application क्या है. In the fourth part, we'll be discussing about APL Apollo versus its competitors, कि आज APL Apollo के पास की competitive advantage अपने competitors की weakness की वजह से भी आती है. In the fifth part, we'll be talking about the sources of competitive advantages. In the sixth part, we'll be discussing about the thesis pointers. In the seventh part, we'll be talking about the risk and the financials of the company. And in the last part, we'll be discussing about the valuations and the narrative of the company. क्योंकि valuations और narrative में we'll also be talking about जो हमने इस company के पास स्कटलबट करा है. माने हमने इनके fabricator से जाके feedback लिया है, इनके distributor से जाके feedback लिया है. We've also done a plant visit. तो स्कटलबट में हम उन सारी चीज़ों की बात करेंगे. तो starting with the mental model. So there is a saying by Charlie Munger that to solve a difficult problem one should invert always invert. इसका मतलब क्या है कि कोई भी आपके सामने डिफिकल्ट प्रॉब्लम आ जाए, आपको प्रॉब्लम को बस इन्वर्ट कर लेना चाहिए, माने प्रॉब्लम को उल्टा करके व्यू करना चाहिए. फॉर एग्जांपल, अगर आपके सामने क्वेश्चन हो कि इंडिया को डेवलपमेंट पाथ पे कैसे लेके आए, तो रैदर देन थिंकिंग कि इंडिया को डेवलपमेंट पाथ पे कैसे लेके आए, इन्वर्जन के थ्रू आपको सोचना चाहिए कि इंडिया की डेवलपमेंट को आज क्या चीज़ स्टॉप कर रही है, क्या अगर हम उन चीज़ों को इफ़ वी कैन डू अवे विद दोज थिंग्स तो क्या डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी या नहीं होएगी. तो दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ इन्वर्ट ऑलवेज इन्वर्ट मीन्स. तो एपीएल अपोलो के बिजनेस एनालिसिस में जब हम आरओसी का डुपॉन्ट करेंगे तब हम इन्वर्ट ऑलवेज इन्वर्ट का प्रिंसिपल लगाएंगे. Now coming to the business history of APL Apollo was started in 1986 by Sri Sudesh Gupta and it was formerly known as Bihar Steel Tubes, right? And 1986 में it was founded at सिकंदराबाद और उस टाइम पे इनका कैपेसिटी सिर्फ 6000 टन्स पर एनम का था, वो भी ब्लैक पाइप्स का था. ब्लैक पाइप्स वाज अ वेरी कमोडिटाइज्ड प्रोडक्ट. From 1986 to 1992 का इनका इवन तो कैपेसिटी काफ़ी ग्रो करा, बट स्टिल इट वाज अ वेरी कमोडिटाइज्ड प्लेयर, क्योंकि ये जो पाइप्स थे उस टाइम पे इनका ट्रेडिशनल यूसेज था एग्रीकल्चर के अंदर, बेसिकली फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यूल एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस एंड लिक्विड्स. बट फ्रॉम 1992 to 2002 the CAGR in capacity production was only at 2%. माने जो कैपेसिटी का ग्रोथ था वो सिर्फ 2% के आसपास हुआ. But in 2002, Sanjay Gupta took over the company as his father expired, right? And since then the company has grown by leaps and bounds, क्योंकि संजय गुप्ता ने बहुत ज़्यादा एग्जीक्यूशन करी है इस बिजनेस में. तो 2007 में जैसे हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि 2007 में इनकी कैपेसिटी थी कुछ 80,000 टन्स पर एनम की. अगर मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूं टू 2020 तो दैट सेम कैपेसिटी हैज ग्रोन टू 2.55 मिलियन टन्स पर एनम, विच इज ह्यूज इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी केगर. कुछ 30 to 36% का कैपेसिटी का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट हुआ है. एंड मोर ओवर संजय गुप्ता ज्वाइन द बिजनेस एट द एज ऑफ 14, राइट? तो काफ़ी ज़्यादा बिजनेस एक्सपीरियंस है उनको एंड इट इज़ अ प्रमोटर ड्रिवन कंपनी. So this was the business history of APL Apollo. Now coming to the question of what are ERW steel pipes. So electric resistance welded pipes are manufactured by cold forming of steel coil into a round cylindrical shape. तो बेसिकली इसमें जो मेजर रॉ मटेरियल है दैट इज HRC कॉइल, एंड HRC कॉइल को ही पहले सिलेंड्रिकल शेप में मैन्युफैक्चर करके उसको डिफरेंट शेप्स देते हैं. समटाइम्स रेक्टेंगुलर शेप देते हैं एंड समटाइम्स स्क्वायर शेप देते हैं. एंड मोर ओवर जो ERW पाइप्स हैं इनका जो एप्लीकेशन है वो फेंसिंग के अंदर होता है, लाइन पाइप में होता है, स्कैफोल्डिंग के अंदर होता है. मोर ओवर जो आपके घर पे रेलिंग लगी होती है उसके अंदर यूज होता है, घर के गेट्स में यूज होता है, एंड एयरपोर्ट के स्ट्रक्चर्स में भी यूज होता है. तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको रिमेंबर करना है कि इनका जो ट्रेडिशनल यूसेज था, द ट्रेडिशनल यूसेज वाज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस एंड लिक्विड. तो इनके ट्रांसपोर्टेशन में यूज होता था. बट मॉडर्न टाइम्स में आफ्टर 2006 एंड 2007 दे हैव स्टार्टेड फाउंडिंग एप्लीकेशन इन स्ट्रक्चरल यूसेज.
तो स्ट्रक्चरल यूसेज में क्या करते हैं कि दीज आर यूज एज हॉलो सपोर्ट स्ट्रक्चर्स फॉर एयरपोर्ट्स, मॉल्स, मेट्रो स्टेशंस एंड प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग। तो आपने एयरपोर्ट पे देखा होगा कि बहुत ज़्यादा स्टील पाइप्स लगे हुए हैं। तो आप इंडिया के दिल्ली के T3 एयरपोर्ट पे भी देखेंगे तो APL अपोलो का ही स्टील पाइप लगा हुआ है पूरे स्ट्रक्चर में। सो दिस इज देयर मॉडर्न यूसेज। एंड इंटरेस्टिंगली क्या हो रहा है कि ERW पाइप्स एल्यूमिनियम एंड वुड को धीरे धीरे रिप्लेस करते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री ग्रोथ भी काफ़ी अच्छे से चल रही है। तो वैल्यू माइग्रेशन भी हो रही है फ्रॉम एल्यूमिनियम एंड वुड टू ERW पाइप्स। And moreover, what is happening कि Indian market of structural steel tubes is still very underpenetrated. So as we can see that structural steel tubes as a percentage of steel markets in India is only at 4 million tons, right? Whereas if we compare it to global average, it is at 9%. In India, it is at 4%. And moreover, potential for structural steel tubes market in India, it is at 4 to 5x in the next decade. Because हो क्या रहा है कि इंक्रीजिंगली हम घरों के बाहर भी क्या देख रहे हैं कि स्ट्रक्चरल स्टील का यूसेज बढ़ते जा रहा है। गेट्स में यूज हो रहा है, रेलिंग्स में यूज हो रहा है। घर के बाहर जो एक टाइम पे लोग पत्थर की रेलिंग्स बनवाते थे, आज वो स्टील ट्यूब्स की बन रही है। मोreover, अगर हम इस इंडस्ट्री में एंड यूजर देखते हैं तो एंड यूजर में पता लगता है कि 40% इज फॉर रेसिडेंशियल हाउसिंग, 22% is for commercial buildings, 22% is in infrastructure and only 16% is for agriculture and others. Moreover, traditional usage में क्या होता था कि पहले जो एग्रीकल्चर एंड अदर सेक्टर है वहाँ पे इनका यूसेज ज़्यादा होता था। एंड अगर हम इस इंडस्ट्री में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब अगर हम इनका कॉस्ट स्ट्रक्चर देखते हैं तो कॉस्ट स्ट्रक्चर देख के ये पता लगता है कि 86% ऑफ द कॉस्ट स्ट्रक्चर इज थ्रू HRC कॉइल्स। तो माने 86% इनका कॉस्ट रॉ मटेरियल में स्पेंड होता है। तो व्हाट डज दिस इंडिकेट कि ये जो स्टील ट्यूब मैन्युफैक्चरर्स हैं, दीज आर जस्ट कन्वर्टर ऑफ स्टील्स, राइट। तो यहाँ पे हम जैसे देख सकते हैं। एंड मोर ओवर यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रियलाइज करना है कि दे वर्क ऑन पास थ्रू मॉडल। तो बेसिकली अगर HRC कॉइल का प्राइस बढ़ा तो दे कैन पास ऑन द प्राइसेस विद अ लैग ऑफ 1 or 2 weeks टिपिकली। तो यहाँ पे हम जैसे चेक कर सकते हैं कि जहाँ पे HRC कॉइल के प्राइसेस जा रहे हैं वैसे वैसे वहाँ पे इनके जो रियलाइजेशन है वो जा रहे हैं। दिस इंडिकेट्स कि दिस इंडस्ट्री इज अ प्योर कन्वर्टर इंडस्ट्री। So APL Apollo basically makes 5 types of products. तो first इनका product है by the name of black tubes. तो black tubes are used in for firefighting and they are also used in agriculture for transportation of liquid. तो ये एक बहुत ज़्यादा commoditized product है and यहाँ पे moreover problem क्या है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा competition है, काफ़ी सारे players country में ये product को बनाते हैं। सेकेंड प्रोडक्ट जो ये बनाते हैं दैट इज बाय द नेम ऑफ हॉलो सेक्शंस। सो हॉलो सेक्शंस आर यूज फॉर स्ट्रक्चरल एप्लीकेशंस। जो हमने देखा था कि एयरपोर्ट स्ट्रक्चर्स में यूज हो रहे हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में यूज हो रहे हैं, तो वहाँ पे हॉलो सेक्शन बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। एंड हॉलो सेक्शन में भी वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज इनका एक और टाइप का हॉलो सेक्शन है बाय द नेम ऑफ डायरेक्ट फॉर्मिंग टेक्नोलॉजी। तो जब हम अभी डिफरेंसेस डिस्कस करेंगे कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी एंड डायरेक्ट फॉर्मिंग टेक्नोलॉजी का, तो जो हमने प्लांट विजिट करी थी हम उसमें से आपको वीडियो दिखा के डिफरेंसेस डिस्कस करेंगे। द थर्ड टाइप ऑफ प्रोडक्ट दैट दे हैव इज बाय द नेम ऑफ प्री गैल्वेनाइज्ड। तो प्री गैल्वेनाइज्ड का मतलब क्या है कि ये एक जो शीट होती है HRC शीट, उसको पहले ही गैल्वेनाइज कर देते हैं जिंक में और उसके बाद उसका पाइप बनता है, राइट। तो यहाँ पे इनका ये हाईएस्ट मार्जिन प्रोडक्ट है और यहाँ पे वैल्यू एडिशन काफ़ी ज़्यादा है। एंड द लास्ट वन इज गैल्वेनाइज्ड आयरन ट्यूब्स। तो प्री गैल्वेनाइज्ड is known by the name of GP tubes and galvanized iron tubes are known by the name of GI tubes. तो जो galvanized iron tubes है उसमें पहले ट्यूब पूरी प्रोसेस होके बन जाती है एंड बनने के बाद उसको जिंक के अंदर डिप करा जाता है फॉर द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन। अब गैल्वेनाइजेशन करते क्यों है? ताकि रस्ट ना लगे। उसके बाद जिंक की एक लेयर चढ़ा दी जाती है जिससे रस्ट नहीं लगती। इफ यू लुक एट द प्रोडक्ट लेवल मार्जिन तो पता लगता है हॉलो सेक्शन में 7 to 8% मार्जिन है, प्लस ब्लैक राउंड पाइप्स में 4 to 5% मार्जिन है। प्री गैल्वेनाइज्ड ट्यूब में, जिसको मैंने आपको बताया था इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू एडिशन है, यहाँ पे 12 to 14% मार्जिन है और गैल्वेनाइज्ड ट्यूब्स में 8 to 9% मार्जिन है, राइट। एंड आज जो इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसमें कुछ 40% इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इज इन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, जहाँ पे इनका कंपटीशन बहुत कम है। एंड मोर ओवर व्हाट दे हैव डन इज दैट दे हैव इंट्रोड्यूस्ड नीश प्रोडक्ट्स लाइक विंडो फ्रेम्स, डोर फ्रेम्स, डोर हैंडल्स, अदर काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स, जहाँ पे ये लो बास्केट बना के प्रोडक्ट्स की बेचते हैं, माने लो वॉल्यूम प्रोडक्ट्स की बास्केट बना के बेचते हैं, जिसमें इनका मार्जिन थोड़ा सा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू देयर कंपेटिटर्स। इफ यू जस्ट लुक एट द EBITDA per ton of different products, we get to know that in terms of black round pipes, इनका जो EBITDA per ton है that is 1259 rupees because it is a very commoditized product। जो हॉलो सेक्शन है अपोलो स्ट्रक्चरल के नाम से जो है, इसके अंदर इनका कुछ 1800 रुपीज़ के आसपास है।
वेराज अगर हम हॉलो सेक्शन अपोलो स्ट्रक्चरल DFT की बात करते हैं जो डायरेक्ट फॉर्मिंग टेक्नोलॉजी से बनता है, उसमें कुछ 2667 रुपीज़ के आसपास है। वेराज जो GI पाइप है दैट इज गैल्वेनाइज्ड ट्यूब्स, माने जब पाइप बनने के बाद जो गैल्वेनाइज होता है वहाँ पे कुछ 4100 रुपीज़ के आसपास है। वेराज जो प्री गैल्वेनाइज ट्यूब्स हैं उनके अंदर कुछ 5200 रुपीज़ के आसपास इनका EBITDA पर टन बनता है। तो दिस इज व्हाट द प्रोडक्ट लेवल EBITDA per ton looks like. Now, what is interesting in this company is that they have grown at a very rapid pace in the last 12 years because they have been taken away market share of their competitors and moreover they have been growing with the market itself. तो स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब्स इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट कुछ 10% के आसपास है, बट APL अपोलो फॉर लास्ट 12-13 ईयर्स नाउ हैज़ बीन कंसिस्टेंटली ग्रोइंग अबव 20% बिकॉज जो कंपेटिटर्स हैं उनका मार्केट शेयर भी खाते जा रहे हैं। एंड टू ग्रो इटसेल्फ इन्होंने 4 एक्विजिशंस भी, तो अपनी कैपेसिटीज को ग्रो करने के लिए APL अपोलो ने टोटल में 5 एक्विजिशंस करी हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सी एक्विजिशंस करी हैं। तो 2007 में दे एक्वायर्ड अपोलो मेटालिक्स एंड दिस वाज डन एज अ मेजर ऑफ बैकवर्ड इंटीग्रेशन। फिर उन्होंने लॉयड लाइन पाइप एक्वायर करा था 2010 में एंड दिस वाज डन टू एक्सटेंड फुटप्रिंट टू वेस्ट इंडिया। Then third acquisition was Sri Lakshmi Metal Udyog, which was done in 2008 for penetrating in South India. फिर टॉरस स्टील ट्यूब इन्होंने अक्वायर करा भी, आई थिंक दिस वोंट बी देयर। तो टॉरस स्टील ट्यूब अक्वायर करे जो शंकरा की फैसिलिटी है 2019 में, which is a 2 lakh tons per annum plant for 70 crores, which they say that they have acquired at a distressed valuation because Shankara building is going through a series of financial difficulties. And in 2019 they acquired Apollo Tricord, which was earlier known as Best Steel Logistics. इसकी भी वीडियो हम थोड़े टाइम में निकालने ही वाले हैं। So these are the 5 acquisitions which they've done. अब इसके बाद हम एक बार चेक करते हैं कि APL अपोलो के और क्या क्या एडवांटेजेस, इनके कितने वेयर हाउस है और उनके कितने प्लांट्स है ऑल ओवर इंडिया। APL अपोलो इज बिकमिंग अ पैन इंडियन प्लेयर बिकॉज अगर हम देखें तो इनके 10 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं एंड दे हैव वेयर हाउसेज एंड डिपोट्स इन क्लोज टू 29 सिटीज। क्योंकि एक इंडस्ट्री बहुत लो मार्जिन बिजनेस है, क्योंकि सिर्फ एक स्टील कन्वर्टर है, तो यहाँ पे इफ यू हैव टू विन यू हैव टू बी प्रेजेंट इन मोर नंबर ऑफ स्टेट्स एंड इन मोर नंबर ऑफ लोकेलिटीज। एंड यहाँ पे जो रीजनल प्लेयर्स हैं उनकी प्रेजेंस भी काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर हम इस इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर में देखें तो इट इज़ अ वेरी फ्रैगमेंटेड इंडस्ट्री एंड 50% ऑफ द इंडस्ट्री इज ऑर्गेनाइज्ड and 50% of the industry is unorganized with small regional players present all over the industry. तो अगर हम इंडस्ट्री स्ट्रक्चर देखते हैं, अगर हम APL अपोलो के उनके competitors के, now before we start with the P2P analysis of APL Apollo, I would just like to inform you कि on 27th of December we are doing a webinar on specialty chemicals industry. इसका registration link we have pasted in the comment below, and in this webinar we'll be talking about the players that meet SOIC filters, right? And moreover we'll be identifying opportunities which are still there because we see a lot of commonalities between the chemical sector and what happened in the IT sector in 1990s and what has happened in the pharmaceutical sector, right? Pharma sector from 2000 to 2015. Like all of these two sectors had massive tailwinds, and we believe that chemical sector is at the same cusp where one can take advantage of tailwinds. To understand the entire value chain, do attend the webinar, and the link to the webinar has been posted in the description below. Now coming to the peer comparison between APL Apollo, High-Tech Pipes and Surya Roshni. So these three are competing against each other in this fiercely competitive industry. But APL Apollo has close to 50% market share now. And whereas other two mains जो high-tech pipes है, only that is very very concentrated towards steel tubes, whereas Surya Roshni has diversified into other types of segments as well. Lighting में भी है, मोरओवर इसके दूसरे टाइप के भी पाइप्स आते हैं। आई थिंक सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी पाइप्स आते हैं। तो यहाँ पे लेट्स जस्ट चेक, APL Apollo has a market cap of 9,100 crores. High-Tech Pipes has a market cap of 212 crores, whereas Surya Roshni, in my opinion, has diversified into a lot of segments. And moreover, if we just look at the ROC profile, so APL Apollo against stands out against its competitors. अभी हम इनके distributors भी देखेंगे कौन कौन इनके distributors हैं, कितने इनके distributors हैं. And if we also look at the ROE profile, again APL Apollo stands out, right? कि मैं अपने शेयर होल्डर की इक्विटी पे कितना कमा रहा हूँ. So again APL Apollo stands out. And just coming down तो यहाँ पे I think और भी interesting चीजें देखने को मिलेंगी. So if we just look at this one, this is very very interesting. If we just check the debt upon equity ratio. So let's just look at debt to equity ratio of all the three businesses. So APL Apollo again has promised कि in next 1 or 2 quarters they will go net debt free.
तो डेट फ्री कंपनी हो सकती है एपीएल अपोलो, तो डेट टू इक्विटी रेशियो इनका विल फॉल समवेयर क्लोज टू 0.1 to 0 times. बट इवन ऑन FY20 बेसिस आई थिंक H1 FY21 में तो डेट नंबर इनका बहुत घट चुका है और भी. पर अगर हम सूर्या रोशनी और हाईटेक से कंपेयर करें तो एपीएल अपोलो का डेट अभी भी इन सबसे कम है. तो अगर if we just look at the debt by equity, APL Apollo का debt by equity is lesser than Hitech Pipes and Surya Roshni. And moreover, अब जो आज के जो 2 क्वार्टर्स आए हैं, so this is based on FY20 numbers, right? तो जो FY21 के जो पहले 2 क्वार्टर्स का रिजल्ट आया है, उसके बेसिस पे इनका डेट और भी घट चुका है, राइट? तो आप ये चीज़ इनका जो डेट है वो जाके देख सकते हैं. इन्होंने अपनी जो हाफ ईयरली रिजल्ट्स आते हैं उसमें मेंशन भी करते हैं कि बोरोविंग्स कितनी है, बैलेंस शीट पे जाके आप चेक कर सकते हैं. इनका डेट बाय इक्विटी रेशियो और भी रिड्यूस हो चुका है. एंड आने वाले टाइम में तो ये कंपनी डेट फ्री ही हो सकती है, व्हिच मेक्स इट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? नाउ जस्ट लुकिंग एट द ROIC, तो ROIC again is at 15%, whereas for other players it is at 9% and 7%. एंड मोर ओवर अगर हम यहाँ पे इन कंपनीज के आके अगर हम ऑपरेटिंग मार्जिन देखते हैं, सो अगेन यू विल जस्ट फाइंड दैट APL Apollo हैज वन ऑफ द APL Apollo के ऑपरेटिंग मार्जिन आर मोस्ट like stable as compared to Hitech Pipes and Surya Roshni. So Hitech Pipes, which is a pure competitor against APL Apollo, K's operating margins are lower than APL Apollo, right? So as we can see over here, तो 2 to 3% lower चल रहे हैं, as we already talked, because their one of the key competitive advantages of APL Apollo is the raw material procurement, क्योंकि इतने बल्क में लेते हैं. सूर्य रोशनी इज एक्चुअली इनटू मोर सेगमेंट्स, तो इस वजह से शायद से इनका ज्यादा दिखे, बट सूर्य रोशनी बहुत सारे सेगमेंट्स में, तो ये एक डिफरेंस आ जाता है यहाँ पे कंपैरिजन में. एंड मोर ओवर अगर हम यहाँ पे एक चीज और चेक करें, सो जस्ट कमिंग टू मटेरियल कॉस्ट, तो सूर्य रोशनी वुड बी इंटायरली कंपेरेबल, बिकॉज यहाँ पे इनका लाइटिंग बिजनेस भी है, फिर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पाइप्स का बिजनेस भी है. तो यहाँ पे अगर हम मटेरियल कॉस्ट देखते हैं, इफ वी जस्ट कंपेयर एपीएल अपोलो विद हाईटेक पाइप्स, तो एपीएल अपोलो में 85% के आसपास है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था दिस इज अ प्योर कन्वर्टर बिजनेस मॉडल. वेराज हाईटेक पाइप्स का 91% के आसपास है. तो मटेरियल कॉस्ट में ही 6% का डिफरेंस मिल जाता है एपीएल अपोलो को. सो अगेन दिस मेक्स इट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. And moreover, if we just come to this, if we just look at the history of like distributing wealth to all the shareholders, so again in this part APL Apollo has been standing out when compared to Hitech Pipes and Surya Roshni. So over here, dividend distribution has been consistently in double digits. Whereas if I compare this to Hitech Pipes, जो which is very very loaded with debt, यहाँ पे ज़्यादा है नहीं. And moreover, यहाँ पे अगर हम सूर्य रोशनी को देखें तो इनका भी कभी कभी डबल डिजिट्स में आया है, बट बहुत ज़्यादा है नहीं. So in terms of distributing wealth as well, APL Apollo has been standing out over its competitors. So this is what the like P2P comparison looks like. And यहाँ पे another thing, interesting thing is the inventory turnover ratio, right? So again, Surya Roshni isn't entirely comparable. If I just compare it to Hitech Pipes, so APL Apollo has had higher inventory turnover than Hitech Pipes. So basically, it is able अपनी जो inventory है उसको ज़्यादा जल्दी घुमा सकता है as compared to Hitech Pipes. एंड जो अगर हम यहाँ पे ये भी चेक करते हैं डेटर डेज, जो आगे हम देखेंगे भी वीडियो में कि डेटर डेज में क्या इंटरेस्टिंग हो रहा है कि एपीएल अपोलो कैश एंड कैरी मॉडल पे जा रहे हैं. इंस्पायर उससे भी पहले एपीएल अपोलो के डेटर डेज कम थे. एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी एपीएल अपोलो का स्ट्रॉन्गर है. एंड आई एक्सपेक्ट दिस टू गो अप राइट इन एपीएल अपोलोस केस. जब हम साल के एंड में जाके देखेंगे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तो वो बहुत अच्छी आ रहेगी. इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज नथिंग बट ईबिट अपॉन इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, कि आप अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट से अपने इंटरेस्ट एक्सपेंस को कितना कवर कर सकते हैं. तो उसके बाद हम इन तीनों कंपनीज के एक बार जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको चेक कर लेते हैं. तो अभी हमने अपने सामने एपीएल अपोलो की रिपोर्ट खोल रखी है, एनुअल रिपोर्ट. तो यहाँ पे एज वी कैन सी कि एपीएल अपोलो हैज मोर देन 800 distributors, right? More than 800 distributors and more than 50,000 retailers, and it is catering to 300 towns and cities. Now if I just look at Surya Roshni, तो सूर्य रोशनी में यहाँ पता लगता है कि सूर्य रोशनी हैज 250 डिस्ट्रीब्यूटर्स. अगर आप ये वाला पार्ट इनका नोटिस करते हैं तो जस्ट गिव मी अ सेकंड, राइट? तो अगर हम सूर्य रोशनी में ये वाला पार्ट नोटिस करते हैं, जो इनकी स्टील ट्यूब्स एंड स्ट्रिप्स का बिजनेस है, सो ओवर हियर दे हैव 21,000 retailers and 250 plus distributors. So in case of APL Apollo, this is at 800 plus and this is at 50,000 plus, right? एंड मोर ओवर अगर हम अगर उसके केस में देखते हैं हाईटेक पाइप्स के, एक सेकंड में उसकी एनुअल रिपोर्ट खोल देता हूँ, एंड देन वी कैन आल्सो कंपेयर ओवर देयर एज वेल. नाउ दिस इज द एनुअल रिपोर्ट ऑफ हाईटेक पाइप्स. तो यहाँ पे इफ वी जस्ट चेक, तो यहाँ पे इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स कुछ 390 के आसपास है.
So again, APL Apollo has more distributors than Surya Roshni and High-Tech Pipes, and डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के नेटवर्क में भी ज़्यादा है. एंड मोर ओवर अगर यहाँ पे इनकी कैपेसिटी देखें तो APL Apollo हैज़ 5x कैपेसिटी देन High-Tech Pipes. So these are some of the competitive advantages that APL Apollo has when compared to its competitors. Now just going back to the video. क्योंकि APL Apollo most number of states में present है and moreover they have a lot of better technology as compared to their competitors जो भी हम देखेंगे. So this gives them unparalleled cost advantage. क्योंकि ऐसी इंडस्ट्री में लॉ ऑफ कंपेटिटिव एक्सक्लूजन बार बार प्ले आउट करता है, जो हमने विनिति ऑर्गेनिक्स की वीडियो में देखा था कि जब लुब्रिजॉल हैड टू एग्जिट द मार्केट क्योंकि विनिति ऑर्गेनिक्स वाज द लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर. सिमिलरली अगर APL Apollo 3% मार्जिन कमाए, नेट प्रॉफिट मार्जिन या 2% नेट प्रॉफिट मार्जिन कमाए, तो व्हाट हैपेंस इज दैट इंटायर इंडस्ट्री गोज इनटू लॉसेस. सो दिस इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू रियलाइज कि इस इंडस्ट्री में भी लॉ ऑफ कंपेटिटिव एक्सक्लूजन प्ले आउट कर सकता है, राइट. तो कमिंग टू द टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट, तो इन्होंने रिसेंटली एक नया टेक्नोलॉजी लगाया बाय द नेम ऑफ डायरेक्ट फॉर्मिंग टेक्नोलॉजी. देयर मशीन हैज बीन प्रोक्योर्ड बाय अ कंपनी बाय द नेम ऑफ ओलंपिया. एंड डायरेक्ट फॉर्मिंग टेक्नोलॉजी और कन्वेंशनल मिल्स के अंदर फर्क क्या है? तो जो DFT टेक्नोलॉजी है उसका एक एडवांटेज क्या है कि DFT टेक्नोलॉजी कस्टमाइज कर सकती है किसी भी पाइप को, एंड इससे रॉ मटेरियल कंजम्पशन 2 to 10% घट जाती है. वेरा जो कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी है उसके अंदर पाइप हमेशा पहले राउंड बनेगा, उसके बाद उसको एक शेप मिलती है. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग टू रियलाइज इज कि DFT टेक्नोलॉजी के अंदर क्या चीज है कि इंटायर जो रोलिंग प्रोसीजर है वो ऑटोमेटेड है. अभी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा प्लांट विजिट की जिसके अंदर हम DFT और कन्वेंशनल मिल के डिफरेंसेस देखेंगे. पर DFT का एक एडवांटेज सबसे बड़ा क्या है कि अगर आपको पाइप का स्ट्रक्चर चेंज करना है, पाइप का साइज चेंज करना है, डिफरेंट क्वालिटी का पाइप बनाना है, तो DFT टेक्नोलॉजी में सिर्फ 1 से 2 घंटे लगते हैं उसको करने में. मेरा जो कन्वेंशनल मिल है उसमें 8 घंटे से 2 दिन लगते हैं पूरा चेंज करने में. जब मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा उसमें मैं आपको ये चीज एकदम मार्कआउट करके दिखाऊंगा. थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द कॉस्ट ऑफ अ कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी मिल इज 3 to 5 crores, whereas DFT का 35 to 40 crores है. एंड मोर ओवर DFT के साथ ये हायर डाया और हायर थिकनेस पाइप बना सकते हैं, क्योंकि हाई डाया और हाई थिकनेस पाइप में मार्जिन बहुत ज्यादा है, whereas कन्वेंशनल पाइप में only a certain sizes of steel tubes can be made. So we did a plant visit of APL Apollo in the month of January, and वहाँ पे हमने देखा कि DFT टेक्नोलॉजी और कन्वेंशनल मिल ट्यूब्स के अंदर फ़र्क क्या है. तो पहला फ़र्क क्या है, एक बारी प्रोडक्शन प्रोसेस को समझना स्टार्ट करते हैं. सो इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ द प्रोडक्शन एन HRC कॉइल इज टेकन. तो HRC कॉइल आती है, बट क्योंकि वो बहुत टाइम से पड़ी होती है तो उस पर ब्लैक कलर की ऑक्सीडेशन हो जाती है, माने उसके ऊपर रस्ट लग जाता है. तो उस रस्ट को क्लीन करने के लिए व्हाट दे डू इसकी उसकी पिकलिंग करते हैं. तो माने एसिड के थ्रू उस शीट को पास थ्रू कराते हैं. एंड पिकलिंग से क्या होता है कि जो ऑक्सीडेशन हुई होती है दैट क्लियर्स अप. तो माने स्टील का जो ऑक्सीडेशन हो रखा है वो एकदम क्लीन हो जाता है. इन द थर्ड प्रोसेस व्हाट दे डू, इसकी जो CR मिल है, इन्होंने CR मिल के अंदर बैकवर्ड इंटीग्रेशन करा है रिसेंटली, दैट इज कोल्ड रोल मिलिंग. तो यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आप समझ सकते हैं कि व्हाट हैज हैपेंड इज कि क्योंकि ये HRC कॉइल टाटा स्टील एंड जिंदल स्टील से लेते हैं, तो व्हाट यूजुअली हैपेंस इज कि दे मेक इन स्टैंडर्ड साइज ऑफ 2 mm. तो ये लोग क्या करते हैं कि टू मेक इट एट 1.2 to 1.4 mm इनको स्पेशली ऑर्डर करना पड़ता है टाटा स्टील को और JSW स्टील को, एंड दे प्रोवाइडेड एट अ मोर एक्सपेंसिव प्राइस क्योंकि 2 mm उनका स्टैंडर्ड साइज है. एंड व्हाट दे हैव डन इज कि इन्होंने 2 mm ही लेते हैं अब उनसे, और उसकी जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रखी है कि उसको प्रेस करके इन हाउस ही 1.2 to 1.4 mm कर देते हैं. एंड बिलो 2 mm इज देयर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, एंड इवन अबव 6 mm इज देयर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट. तो 2 mm के नीचे क्योंकि दे आर द लार्जेस्ट बायर ऑफ स्टील इन इंडिया, तो इस वजह से क्या हो रहा था कि JSW और टाटा स्टील को भी 1.2 to 1.4 mm की शीट्स बनानी पड़ रही थी. क्योंकि इन्होंने बैकवर्ड इंटीग्रेशन नहीं कर लिया तो अब उनसे ये स्टील वो शीट्स HRC कॉइल खरीद नहीं रहे. तो दैट इज अ डिसएडवांटेज फॉर अदर प्लेयर्स लाइक सूर्या रोशनी एंड अदर कंपनीज लाइक हाईटेक. क्योंकि हाईटेक का अगर मैं मार्केट कैप देखूं तो मार्केट कैप से ज्यादा उनके पास डेट है. The market cap is somewhere close to 120 crores, whereas debt is somewhere close to 350 crores. So they just do not have the balance sheet strength to do such kind of backward integration.
तो ऐसी बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करी है कि एक तो कॉस्ट सेविंग हो रही है, एंड सेकेंड चीज़ क्या हो रही है कि इनके प्रोडक्ट सेगमेंट पे दूसरे कंपेटिटर का आना मुश्किल है जब तक वो भी अब बैकवर्ड इंटीग्रेशन नहीं करते, क्योंकि टाटा स्टील और JSW स्टील का 1.2 to 1.4 mm के HRC कॉइल का प्रोडक्शन रोकना चाहते हैं. दिस वॉज द थर्ड स्टेप ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस. इन द फोर्थ स्टेप द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन हैपन्स कि अगर वो प्री गैल्वेनाइज शीट है तो उसको जिंक के थ्रू गैल्वेनाइज करते हैं. जिंक दे बाय फ्रॉम हिंदुस्तान जिंक बिकॉज दे हैव अ कंप्लीट मोनोपोली. एंड व्हाट हैपन्स इज आफ्टर द गैल्वेनाइजेशन इज कंप्लीट, शीट को वापस कॉइल करके ये मिल के अंदर एंटर करते हैं फिफ्थ स्टेप के अंदर. तो द मिल it is welded into the mill. So what happens once it is inside the mill is that the sheet enters the mill, as we can see in the video, the way it is entering, and this is the machine, right? The blue colored machine जिसमें पाइप बनता है. तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट रिमेंबर करना कि ये कन्वेंशनल मिल है, तो इसके अंदर पहले जब ये शीट जा रही है तो दिस विल बी ट्रांसफॉर्म इनटू अ राउंड पाइप फर्स्ट, ओनली देन इट विल बी गिवन अ डिजायर्ड शेप. तो यहाँ पे हम जैसे देख सकते हैं कि दिस शीट इज एंटरिंग द मिल, and after entering the mill it will first be transformed into a round pipe. So let's just observe, right? So this is the process of flattening that is happening, and यहाँ पे जैसे जैसे हम आगे चलेंगे we'll observe कि कैसे कैसे धीरे से इसको एक राउंड शेप मिलते जा रही है. In just a couple of seconds we'll see. Right? So just over here, these are the rolls which are used to provide the shape to the pipe. तो यहाँ पे the shape is being given in a round size, right? क्योंकि कन्वेंशनल मिल है तो पहले इसको राउंड में बनाएंगे, फिर उसके बाद जो डिजायर्ड शेप होगी उसके अंदर आएगा, एंड बीच में जो वेल्डिंग का प्रोसेस है इवन दैट विल हैपन. नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट स्टेप कि नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है कि वेल्डिंग कैसे होगी, एंड वेल्डिंग के साथ साथ कैसे कैसे इसको जो रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर शेप दी जाएगी. Now in this step we can see that the pipe is being given a round shape, and round shape के बाद it will be welded in the machine itself. जैसे हम यहाँ देख सकते हैं this is the process of welding that is happening. I'll just circle this for you. यहाँ पे welding हो रही है इस प्रोसेस के अंदर, एंड यहाँ पे पूरा पाइप आपका राउंड हो चुका है. राउंड होके जो शीट है दैट इज बीइंग वेल्डेड. ये जो आप स्क्रैप देख रहे हैं जो बच रहा है, दिस स्क्रैप इज सोल्ड अलग से. अगर हम इनके इनकम स्टेटमेंट देखें तो हमें स्क्रैप की सेल भी दिखेगी. सो दिस इज व्हाट द स्क्रैप इज. दिस स्क्रैप इज सोल्ड सेपरेटली फ्रॉम दिस, एंड दिस स्क्रैप इज ऑल्सो नोन एज पतरा. पतरा का भी पाइप काफी बनता है. So and over here the pipe enters the next step of production, and after the welding is completed, from the round shape it is being given different types of shape. तो माने अगर किसी को स्क्वायर पाइप चाहिए या किसी को अगर रेक्टेंगुलर पाइप चाहिए तो पहले वो राउंड बनेगा और उसके बाद स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप देंगे. सो दिस मशीन विच यू सी विच इज येलो इन कलर, दिस इज बेसिकली यूज टू कट द पाइप्स. क्योंकि एक कंटिन्यूस प्रोडक्शन है, बार बार प्रोडक्शन होती जाएगी, तो समथिंग इज रिक्वायर्ड टू कट द पाइप्स. So this is how the complete production process of conventional mill looks like, right? What is important to realize in conventional mills, इसकी conventional mills के अंदर क्या होता है कि जो इनके रोल्स हैं, वन रोल जो अगर इनको डिफरेंट शेप बनाना है तो दिस वन रोल कैन कॉस्ट अप टू 10 लाख रुपीज, 10 to 12 लाख रुपीज अगर इन्हें कोई डिफरेंट शेप का पाइप बनाना है. एंड सेकेंड चीज क्या है, क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड साइज ऑफ पाइप्स बना रहे हैं, स्टैंडर्ड साइज ऑफ ट्यूब्स बना रहे हैं, तो यहाँ पे कंटिन्यूस प्रोडक्शन में तो हेल्प काफी होगी, पर एक कस्टमाइज्ड ऑर्डर्स नहीं ले सकते. जैसे अगर किसी को डिफरेंट साइज का चाहिए तो एक कस्टमाइज्ड ऑर्डर नहीं ले सकते, क्योंकि पूरे अगर ये रोल को खोलते हैं, जैसा कि हम इस वीडियो में देख सकते हैं, अगर ये पूरे रोल को आपको खोलना है तो अगर आपको दूसरे टाइप का पाइप बनाना है तो इट टेक्स समवेयर बिटवीन 8 hours to 2 days to complete the entire change process, क्योंकि पूरा मैनुअल प्रोसेस है. So now over here direct forming technology comes into play. Even though DFT टेक्नोलॉजी 35 to 40 करोड़ की मिल है, बट उसमें एक कस्टमाइज्ड ऑर्डर ले सकते हैं, लोअर बैच ऑफ प्रोडक्शन कर सकते हैं, राइट? जैसे यहाँ पे आपका बैच ऑफ प्रोडक्शन काफी ज्यादा होगा तो यहाँ पे आप लोअर बैच ऑफ प्रोडक्शन कर सकते हैं, एंड दिस इज समथिंग विच इज रेवोल्यूशनरी. जैसे पेंट्स इंडस्ट्री के अंदर टिंटिंग टेक्नोलॉजी आई थी,
सिमिलरली पाइप्स इंडस्ट्री के अंदर DFT टेक्नोलॉजी आई है एंड दे ऑल्सो टुक अ पेटेंट ऑफ 3 years की किसी और को आप ये बेच नहीं सकते। एंड आई थिंक इंडियन इंडस्ट्री में अभी तक किसी और ने ये टेक्नोलॉजी लगाई नहीं है। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन DFT एंड द कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी। एंड DFT के अंदर इनका मार्जिन भी हायर है क्योंकि ऑर्डर्स आर मोर कस्टमाइज्ड इन नेचर। तो पहले जो इंडस्ट्रीज को ये केटर नहीं कर सकते थे लाइक ऑटोमोबाइल्स एंड बस, अभी उसको भी केटर कर सकते हैं बिकॉज दे कैन प्रोड्यूस इन लोअर साइजेस एज वेल। So this was the basic difference between DFT and a conventional mill. Now coming to the key competitive advantages of APL Apollo. So the first key competitive advantage of APL Apollo is that APL Apollo buys 2% of Indian steel consumption. And secondly क्या करते हैं कि 10% of Indian HR coil की जो consumption है that APL Apollo purchases. So this gives them a 2% inventory discount. तो as compared to their competitors, यार एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आज मैं 20 लाख टन्स ऑफ स्टील ट्यूब बना रहा हूँ एंड मैं जाके अपने सप्लायर से नेगोशिएट करूं एंड अगर आप सिर्फ 1 लाख टन्स ऑफ स्टील ट्यूब बना रहे हैं एंड आप जाके सेम सप्लायर से नेगोशिएट करें तो इट इज़ बट ऑब्वियस कि जो 20 लाख टन्स बना रहे हैं उसको डिस्काउंट मिलेगा अपफ्रंट। सिमिलरली यहाँ पे भी यही केस हो रहा है, तो इनको 2% अपफ्रंट डिस्काउंट मिलता है जो बाकी प्लेयर्स को नहीं मिल पा रहा। And secondly, what their key competitive advantage is that APL Apollo has a pan-Indian presence. So what we mean by pan-Indian presence is that they have their plants in north, west, central and southern part of India. तो इंडिया के हर पार्ट में इन्होंने अपने प्लांट्स बना रखे हैं। तो इससे क्या होता है, क्योंकि एक बहुत फ्रेट हैवी इंडस्ट्री है, आपको ये समझना पड़ेगा कि जब हमने देखा था इनके कंपेटिटर्स का EBITDA मार्जिन तो किसी का भी 6 to 7% से ज़्यादा नहीं था। तो यहाँ पे अगर 1 to 2% कॉस्ट सेविंग भी आ जाती है, डैट टू इवन थ्रू फ्रेट, माने अगर थ्रू शिपिंग और जो उसका कॉस्ट होता है लॉजिस्टिक्स का, अगर उसमें आप कॉस्ट सेविंग कर सकते हैं बाय जस्ट बीइंग नियरर टू योर कस्टमर, तो यू कैन एंड अप सेविंग अ लॉट ऑफ मनी। अगर 1-2% मार्जिन भी बचता है तो डैट गिव्स यू अ ट्रेमेंडस बिट ऑफ एडवांटेज ओवर योर competition. The third key competitive advantage that APL Apollo has is that in nearly 40% of its portfolio it does not have any competitors, as it produces a basket of many small products and it has more than 1500 SKUs. Whereas अगर हम सूर्य रोशनी को देखेंगे तो they have only more than 400 SKUs. तो यहाँ पे 1100 SKUs का भी काफ़ी ज़्यादा फर्क आता है। एंड फोर्थ थिंग टू लुक एट इज इट हैज़ अ वाइडेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन रीच, जो हमने पहले भी बात करी थी कि इनके 790 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं एंड नियरेस्ट कंपेटिटर के सिर्फ 250 से 300 ही डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। एंड मोर ओवर दे हैव 40,000 रिटेलर्स। जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ द स्केल, हाईटेक पाइप्स ओनली हैज 5,000 रिटेलर्स वर्किंग विद देम, राइट? एंड वेयर हाउसेज एंड डिपोट्स भी 29 सिटीज में। फिफ्थ सोर्स ऑफ कंपेटिटिव एडवांटेज विच कैन बी in such commoditized industries is the strength of the balance sheet. क्योंकि they have the balance sheet strength, so they have been able to do smart acquisitions and moreover what also happens is कि क्योंकि आज कोविड का टाइम चल रहा है तो कोविड के टाइम में इमेंस प्रेशर आ रहे हैं इन सबकी बैलेंस शीट्स में। जब अभी हम इन्वर्जन का मेंटल मॉडल अप्लाई करेंगे तब हम देखेंगे कि इमेंस प्रेशर कैसे आ रहा है। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट होना इज एक्चुअली अ वेरी बेनिफिशियल थिंग फॉर देम, right? And moreover, this strong balance sheet has enabled them to raise working capital loans at 100 to 200 basis points lower than their competitors. माने like 1 to 2% सस्ते कॉस्ट पे लोन रेज कर सकते हैं as compared to their competitors, क्योंकि this industry was a working capital heavy industry, क्योंकि receivable days में 20 to 30 to 40 days के आसपास फंसे ही रहते हैं। So this is a key competitive advantages of APL Apollo. And in the second aspect we'll be now discussing कि इस इंडस्ट्री के अंदर एक सडन चेंज क्या आ रहा है। सो लेट्स डू द डुपॉन्ट ऑफ ROIC टू अंडरस्टैंड कि इस इंडस्ट्री के अंदर चेंजेस क्या हो रहे हैं। तो डुपॉन्ट में हमें पता लगता है कि एक साइड पे आपका क्या फिगर है, दैट इज नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस अपॉन सेल्स। कुछ लोग इसको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन सेल्स भी लेते हैं सिर्फ। एंड अदर साइड पे हमारे पास क्या फिगर आती है, दैट इज सेल्स अपॉन इन्वेस्टेड कैपिटल। तो फर्स्ट साइड मेरे को क्या बता रहा है कि इस कंपनी का मार्जिन कितना है, राइट? एंड सेकेंड साइड मेरे को क्या बता रहा है कि 1 रुपये के इन्वेस्टेड कैपिटल पे कंपनी कितने रुपए की सेल जनरेट कर सकती है। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं, अगर इस इंडस्ट्री के अंदर इनका नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस अगर 3 to 4% है, यहाँ पे इन्वेस्टेड कैपिटल टर्नओवर 4 to 5 टाइम्स है, इस वजह से ROIC ये कुछ 16 to 20% के बीच में कमाते हैं। बट नाउ जस्ट अंडरस्टैंड, क्योंकि यहाँ पे वीकर प्लेयर्स भी हैं जिनकी बैलेंस शीट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, उनके साथ कोविड के एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है,
उनके साथ कोविड में क्या हो रहा है कि अगर आपका जो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस अपॉन सेल्स, अगर आपका मार्जिन नेगेटिव हो जाता है, अगर आपका -1 या -2% मार्जिन हो जाता है, वेराज अगर आपका जो सेल्स अपॉन इन्वेस्टेड कैपिटल 4 to 5 टाइम्स ही रहता है, तो व्हाट एंड्स अप हैपनिंग इज कि आपका जो ROIC है दैट गोज इनटू -10 to -15%, एंड दिस लीड्स टू अ सिचुएशन जहाँ पे बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स आर गोइंग बस्ट। एक्चुअली में हो भी रहे, काफ़ी सारे अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैव ऑलरेडी क्विट द मार्केट इन कोविड टाइम्स, क्योंकि ये 2-3-4% मार्जिन पे काम करते थे, एंड क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टेड कैपिटल टर्नओवर बहुत ज़्यादा था, इस वजह से दे वर सर्वाइविंग इन द बिजनेस। पर क्योंकि एकदम मार्जिन ही इनका नेगेटिव हो चुका है एंड इन्वेस्टेड कैपिटल टर्नओवर अगर रिड्यूस भी है या उतना ही है, तो दिस लीड्स टू सिचुएशन वेयर अ कंपनी गोज बस्ट इन अ लो मार्जिन बिजनेस। तो ये APL अपोलो में भी ये सोर्स ऑफ रिस्क है, बट सिंस दे हैव द बैलेंस शीट स्ट्रेंथ दे कैन wither this out. Second key change that has happened in the industry is that from a receivable days of 27 to 28 days, APL अपोलो का जो receivable days है that has come down to 10 to 5 days. तो इसका मतलब क्या है कि this industry is going to cash model, cash and carry model, कि आप कैश रखिए और उसी वक्त माल उठा लीजिए. This is what is happening, and we can also see that what has happened is that their receivables have come down from 476 crores to 124 crores. तो इससे क्या हो रहा है कि कैपिटल एम्प्लॉयड का इंटेंसिटी घट रहा है बिजनेस के अंदर. माने अगर आपका जो न्यूमरेटर है वो सेम भी है, या अगर आपका डिनोमिनेटर घट जाता है तो ऑटोमेटिकली आपका ROCE एक्सपैंड हो जाता है या ROIC एक्सपैंड हो जाएगा. एंड सेकेंड चीज यहाँ पे क्या हो रही है जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि देयर नेट डेट हैज फॉलन from 800 crores to somewhere close to 270 crores. ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वर्किंग कैपिटल में अब पैसा ज़्यादा नहीं फंस रहा, रिसीवेबल डेज कम हो गए, इन्वेंट्री डेज भी पहले से कम हो गए. इन्वेंट्री डेज का भी इन्होंने गाइडेंस दिया है कि हम 30 डेज पे मेंटेन करेंगे. तो व्हाट हैज़ हैपेंड कि वर्किंग कैपिटल में से जैसे ही पैसा रिलीज हुआ दैट हैज़ लेड टू रिडक्शन इन डेट, एंड द कंपनी हैज़ गाइडेड फॉर बीइंग डेट फ्री इन नेक्स्ट 12 months. दिस कैन बी अ वेरी बिग सोर्स ऑफ ट्रिगर फॉर द कंपनी, बिकॉज व्हाट विल एंड अप हैपनिंग इज कि अगर जैसे आप डी लेवरेज करेंगे, कंपनी का ROIC विल गो अप एंड कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन्स विल आल्सो गो अप. एंड सेकेंडली जैसे आपका नेट वर्किंग कैपिटल वुड रिड्यूस, जैसे कैपिटल एम्प्लॉयड का इंटेंसिटी घटेगा, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड में जो 2 मेजर पार्ट्स हैं दैट इज योर नेट फिक्स्ड एसेट्स एंड नेट वर्किंग कैपिटल. तो उससे क्या होगा कि ROCE एक्सपैंड हो जाएगा. अगर आज ROCE 20% है, व्हाट कैन पोटेंशियली हैपन इज कि ROCE कैन गो टुवर्ड्स 25 to 30%, क्योंकि आपका जो डिनोमिनेटर है उसका इंटेंसिटी रिड्यूस होते जा रहा है. सो दिस इज व्हाट कैन हैपन इन APL अपोलो, एंड दिस इज व्हाई स्टॉक हैज री-रेटेड इन कोविड टाइम्स, क्योंकि एक ही दम आपका जो रिसीवेबल डेज था 28 to 30 डेज से 10 to 5 डेज के आसपास आ गया. एंड स्टिल इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन इट कैन बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज अगर हम एस्ट्रल पॉलीटेक्निक को देखें तो एस्ट्रल पॉलीटेक्निक 60 to 70 टाइम्स PE मल्टीपल पे ट्रेड करता है, एंड वहाँ पे भी वो इंडस्ट्री इज वेरी कंपेटिटिव, इवन दो एस्ट्रल इज अ डोमिनेंट प्लेयर ओवर देयर, बट वहाँ पे भी बिल्डिंग मटेरियल का नैरेटिव है. सिमिलरली APL अपोलो में भी बिल्डिंग मटेरियल का नैरेटिव बन सकता है. बट बिफोर कमिंग टू द वैल्यूएशन बिट एंड द नैरेटिव बिट एंड द scuttlebutt bit, I would like to tell you about the risks that are there in the business. So there are 6 or 7 sources of risk in the business. Let's discuss them. So the first source of risk that is there is low promoter holding. तो APL अपोलो में promoter holding has always been between 38 to 40%. तो we generally prefer companies जहाँ पे 50% से ज़्यादा तो at least promoter holding होना चाहिए, because that shows that the promoter has skin in the game. But over here promoter holdings, the dilution of promoter holding has majorly happened for deleveraging. तो उन्होंने 2008 में GDR इशू करा था, फिर अगेन इन्होंने बीच में और equity raise करा था for capex purpose and acquisition purpose and for deleveraging. सेकेंड थिंग यहाँ पे क्या रिस्क का है दैट इज एजेंसी कॉस्ट. तो जब इन्होंने अपोलो ट्राइकॉट का एक्विजिशन करा था, तो अपोलो ट्राइकॉट के एक्विजिशन में तो व्हाट हैपेंड वाज कि प्रमोटर की जो APL अपोलो ग्रुप की जो होल्डिंग थी APL अपोलो स्टील ट्यूब्स की, दैट वाज ओनली लिमिटेड एट 50 to 51% एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो दैट लीड्स टू सम काइंड ऑफ एजेंसी कॉस्ट की अगर आपने ट्राइकॉट पाइप्स या ट्राइकॉट ट्यूब स्टार्ट ही करनी थी तो आप APL अपोलो में से क्यों नहीं कर रहे, सब्सिडरी के थ्रू क्यों कर रहे हैं. तो दैट इज डेफिनेटली एजेंसी कॉस्ट ओवर हियर. तो दिस कैन बी अ सोर्स ऑफ रिस्क. एंड मोर ओवर कपल्ड विद दिस another source of risk is कि APL Apollo जो the group company is spending close to 50 to 55 crores on advertisement, and ये advertisement is also benefiting Apollo Tricot.
अब द प्रॉब्लम ओवर हेयर अराइजेस कि अपोलो ट्राइकॉट में APL अपोलो डज नॉट ओन 100% ओनरशिप, 50 to 55% ही है अभी भी. सो फ्री में उनका एडवर्टाइजमेंट हो रहा है इन अ वे अपोलो ट्राइकॉट का. अगेन दिस इज अ पार्ट ऑफ एजेंसी कॉस्ट. थर्ड पार्ट इज लो मार्जिन बिजनेस. इफ आई टू टेक अवे ऑल द ब्रांडिंग और जितना भी ब्रांडिंग करें डेली डेल डेवल्स एंड हर किसी चीज़ का, एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ अ लो मार्जिन बिजनेस ओनली, क्योंकि नेट प्रॉफिट मार्जिन 3 या 4% से ज़्यादा है नहीं. बट यहाँ पे शायद से चेंज हो सकता है अगर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में ज़्यादा बेटर प्राइसिंग आ जाती है तो. अनदर सोर्स ऑफ रिस्क इज पत्रा एंड स्क्रैप स्टील. तो जो पत्रा मैंने आपको दिखाया था वीडियो के अंदर, जो स्क्रैप स्टील था, अब स्क्रैप स्टील की भी प्रोडक्शन दूसरे लोग करते हैं एंड 1-1.5% मार्जिन पे ही उसकी ट्यूब बना के बेच देते हैं. सो दिस इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ रिस्क बिकॉज ऑर्गेनाइज स्टील ट्यूब मार्केट इज ओनली ऑफ 4 मिलियन टन्स इन साइज, whereas जो अनऑर्गेनाइज्ड है दैट इज ऑफ 2 to 2.5 मिलियन टन्स इन साइज. तो अगर कोविड के टाइम में लोगों की बाइंग पावर कम होती है तो दे कैन डू डाउन ट्रेडिंग इफ इट हैपेंस, राइट. वन मोर सोर्स ऑफ रिस्क इज स्लो डाउन इन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, क्योंकि एंड यूजर कंस्ट्रक्शन है. एंड अनदर वन इज कॉम्पिटिशन फ्रॉम टाटा स्टील एंड JSW स्टील. अगर APL अपोलो बहुत बड़ी कंपनी बन जाती है, अगर इनका सेल 30-40 हज़ार करोड़ का हो जाता है, another source of risk with that can arise is कि Tata Steel and JSW Steel can sense an opportunity and they can do forward integration क्योंकि they are fully backwards integrated into HRC coils. This can be a source of risk if it grows in size a lot. This one is one of the most important sources of risk, that is inventory loss. क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी स्टील की जब साइकिल ऊपर जाती है, जब HRC कॉइल के प्राइसेस बढ़ते जाते हैं, दिस इज द टाइम व्हेन द EBITDA पर टन कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. जैसे यहाँ पे मैं आपको एक चार्ट दिखा रहा हूँ, तो टिल 2017-2018 देयर EBITDA पर टन वाज इंक्रीजिंग, बट सिंस 2018 to 2020 दिस हैज फॉलन, क्योंकि HRC कॉइल के प्राइसेस गिर रहे हैं. हर महीने गिर रहे थे 2019 में HRC कॉइल के प्राइसेस, जिसकी वजह से इनको इन्वेंट्री लॉस हो रहा था. हर मंथ JSW स्टील एंड टाटा स्टील इन्वेंट्री के HRC कॉइल के प्राइसेस अनाउंस करते थे एंड जैसे ये खरीदते थे, इनके खरीद के बाद ही वो प्राइसेस गिरने लग जाते थे. तो दिस इज व्हाट लेड टू इन्वेंट्री लॉसेस. सिंस देयर आर प्योर कन्वर्टर, तो अगर इनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ जाता है, जो आज सिर्फ 60 to 65% के आसपास है, तो व्हाट द मैनेजमेंट हैज गाइडेड फॉर कि हमारा इन्वेंट्री लॉस विल ऑल्सो रिड्यूस. लेट्स सी इफ दैट हैपेंस और नॉट, बट दीज आर द की सोर्सेज ऑफ रिस्क इन द बिजनेस. Now coming to the valuation bit and to the narrative of the business. Financials के हमने एक प्रेजेंटेशन बना के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप सारा चेक कर सकते हैं कि इनका ROE कितना है, डुपॉन्ट क्या है ROE का, ROC कितना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स, नेट प्रॉफिट मार्जिन्स, एंड एवरीथिंग इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन itself along with the market share of the company. We have uploaded the entire presentation. Coming to the valuation scuttlebutt and the narrative of the business. Valuation के terms में this business trades at a PE multiple of 30 to 32 times. एंड मोर ओवर अगर मैं प्राइस बाय कैश फ्लो मल्टीपल देखूं, तो इनके कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस में इस बारी ज़्यादा ग्रोथ इस वजह से आई है क्योंकि वर्किंग कैपिटल में से पैसा रिलीज हो गया. आपके जो उधार के दिन थे वो 28 या 27 दिन से 10 डेज के आसपास आ गए. आई थिंक सो लास्ट क्वार्टर में हुआ था ये, तो इस वजह से रिसीवेबल्स में से पैसा छूट गया. सो व्हाट एंडेड अप हैपनिंग इसकी CFO आई थिंक 350-360 करोड़ से इस बारी 510 करोड़ आया है. तो अगर मैं प्राइस अपॉन कैश फ्लो मल्टीपल देखूं तो इट ट्रेड्स एट 14 to 15 times, right? So this was the valuation. अब valuation में एक important चीज क्या है कि आपको narrative साथ जोड़ना पड़ेगा. So there are two narratives which are over here. If we just look at the stock chart of APL Apollo, so from 2014 to 2017-2018 it went through a good cycle. क्योंकि इनका बेस्ट साइकिल तब होता है जब स्टील प्राइसेस बढ़ते जाते हैं एंड इनका भी EBITDA पर टन बढ़ते जाता है. बट 2018 और 2019 में स्टील प्राइसेस वर क्रैशिंग. 2019 आई थिंक सो नवंबर में और द मैनेजमेंट टोल्ड अस कि स्टील प्राइसेस वर क्रैशिंग सब्सिक्वेंटली फॉर 6 months, मतलब हर 6 महीने में हर महीने गिर रहे थे, जिसकी वजह से हमें इन्वेंट्री लॉस हो रहा था. तो 2018 टू 2019 में अगर आप इनका स्टॉक चार्ट चेक करेंगे, सो देयर स्टॉक हैज बीन रिलेटिवली फ्लैटिश. But COVID के times में what has happened is they have gained market share because a lot of unorganized competition has collapsed and moreover capital intensity has reduced. So there are two narratives. First narrative is that this is a semi-commodity player. It is not a complete commodity. It is not a completely branded player. तो semi-commodity player है
जो इस टाइम पे ब्रांड के वैल्यूएशन पे मिल रहा है आपको इन टर्म्स ऑफ अगर हिस्टोरिकल पी बैंड देखे, राइट। तो यहाँ पे ये एक फर्स्ट नैरेटिव ये है कि ईदर व्हाट यू कैन डू इज कि यू कैन लुक एट सच बिजनेसेस व्हेन दे आर गेटिंग द वैल्यूएशन ऑफ अ कमोडिटी बिजनेस। जब ये 1000-1100 रुपए पे आपको स्टॉक वाज ट्रेडिंग एट व्हेन द पी मल्टीपल वाज इटसेल्फ वाज एट 13-14 टाइम्स व्हेन इट वाज ट्रेडिंग एट अ कमोडिटी मल्टीपल। सेकेंड नैरेटिव इज सच कि शायद से इंडस्ट्री में स्ट्रक्चरल चेंज आ गया which has led to स्ट्रक्चरल रिडक्शन इन नेट वर्किंग कैपिटल, कि नेट वर्किंग कैपिटल स्ट्रक्चरली रिड्यूस हो गया है। जो इनके रिसीवेबल डेज हैं वो 23 to 27 डेज से 10 डेज पे आ गए हैं। एंड व्हाट मैनेजमेंट इज गाइडिंग फॉर इज नेगेटिव वर्किंग कैपिटल साइकिल, माने कि एडवांस में काम करेंगे। अगर ऐसा हो जाता है तो these valuations would be actually cheap, क्योंकि अगर if this thing comes to be true तो Astral Polytechnic trades at a PE multiple of 70 to 80 times, whereas this company is trading at a PE multiple of 30 to 32 times. Whereas this is a market leader, even Astral Polytechnic is a market leader, but if this thing happens then this stock would be cheap at this price. So it's a game of narratives and it's a game of numbers. So it is your job as an investor कि आपको रिसर्च करनी चाहिए ना, आपको कौन से नैरेटिव में बिलीव करना है, उसी वैल्यूएशन पे आप बिलीव करेंगे। दिस इज व्हाट द स्टोरी हैज कम टू, राइट। एंड Q2 FY21 में इन्होंने एक डिस्क्लोजर भी करा था कि देयर नेट डेट हैज फर्दर फॉलन फ्रॉम 350 odd crores to 290 to 280 crores. So again the second narrative is actually gaining precedence, माने जिसमें हम बात कर रहे थे कि वर्किंग कैपिटल इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी तो डेट भी और रिड्यूस हो गया, क्या पता जो इनके जो रिसीवेबल्स हैं वो और घट गए हो। तो बैलेंस शीट जब आएगी तो आपको बैलेंस शीट में ये चीज जरूर चेक करनी चाहिए, राइट। दिस इज व्हाट द नैरेटिव इज एंड दिस इज व्हाट द वैल्यूएशन इज। वी डू नॉट लाइक टू डू अ वेरी कोर फोकस्ड DCF एनालिसिस की 10% इधर हो गया 5% उधर हो गया तो खरीद लो या बेच दो। वैल्यूएशन पे वील बी कमिंग आउट विद अ वीडियो वेरी सून कि हाउ डू वी वैल्यू कंपनीज एंड व्हाई वैल्यूएशन इज नॉट ओनली अबाउट numbers but it is also about a marriage between narrative and numbers, that whether the growth can continue or whether the growth is cyclical. So guys, this was a valuation analysis of APL Apollo, and right now I'll be just sharing the scuttlebutt notes with you that when we went to meet the management, we also met the distributor and we also met the fabricator of the company separately. So in terms of the management meet notes, so the management said that we get our millers, that is machines customized from China, and the management also said that very few companies have risk-taking capacity like us. This is proven by the fact that nearly 40% of our products we do not face any competition. And I think कि यहाँ पे इनको benefit of the doubt जाना भी चाहिए, क्योंकि किसी ने DFT मशीन नहीं लगाई, किसी की बैलेंस शीट में इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं थी, एंड मोर ओवर जो ट्राइकॉट का इनका प्रोडक्ट आया है किसी और ने अभी तक नहीं करा। आई थिंक 4 और 5 कंट्रीज के अंदर ही वो प्रोडक्ट है। एंड दिस ऑल्सो शोज द रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। कलर कोटेड पाइप्स ये लोग लेके आए, इनलाइन गैल्वेनाइजेशन टेक्नोलॉजी ये लोग लेके आए। जब हम अपोलो ट्राइकॉट करेंगे तब हम इनलाइन गैल्वेनाइजेशन सीखेंगे क्या चीज़ है। And again they say he says that entire focus is to be the lowest cost producer and to be the last man standing in the industry. Business is currently divided between 50% commodity and 50% value added tubes and will not reduce commodity tubes, don't want competition to take advantage and later expand into newer products. माने बता रहे हैं कि हम commodity वाले segment में भी रहेंगे ताकि जो commodity players हैं वो value added पे ना आए, क्योंकि अभी भी commodity में in a way we are undercutting them since we are the lowest cost producers. Now size of the industry is 6 million tubes with 4 million structural and 2 million patra. माने जो पतरा डेट इज क्रैप वो डेट इज ऑफ 2 million इन साइज, सो दिस कैन बी रिस्क टू द इंडस्ट्री अगर डाउन ट्रेडिंग होती है कोविड के टाइम में, राइट। Now going forward, what the management said that the aim is to improve higher dia products which have higher margins. So I think he also mentioned a company by the name of Zeckelman, which is from US, and he also said that they earn EBITDA margins, EBITDA per ton, which is like 4 or 5 times higher than APL Apollo steel tubes. I think 15,000 के आसपास बात करी थी. And second thing, he says that they foresee a capex of 20 to 25% of EBITDA per year. And this was more or less the management meet notes, and management meet notes में उन्होंने एक और चीज़ भी mention करी थी कि at Raipur he wants to create the steel city of India. तो he has plans of doing capex of I think 5 lakh tons per annum की facility लगाने का वहाँ पे plan है, which has been put on hold क्योंकि कोविड के times में a little uncertainty is definitely over there. In terms of the fabricator feedback, तो यहाँ पे एक principal agent का mental model बहुत अच्छे से लग सकता है कि what usually happens in such industries is, क्योंकि जो end user है उसका जो
बाइंग डिसीजन है दैट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, माने जो फैब्रिकेटर है आर्किटेक्ट है उसके बेसिस पे, तो APL Apollo हैज एक्चुअली कैप्चर्ड द माइंड शेयर ऑफ द फैब्रिकेटर. तो वी हैव कन्वर्स्ड विद अ लॉट ऑफ फैब्रिकेटर. आप किसी भी फैब्रिकेटर या आर्किटेक्ट से बात करो, द डिफॉल्ट नेम फॉर स्टील ट्यूब्स इज APL Apollo स्टील ट्यूब्स, बिकॉज दे हैव एक्चुअली कैप्चर्ड द माइंड शेयर ऑफ सच कस्टमर्स. जैसे पेंट्स में एशियन पेंट्स हुआ है, कारपेंटर के लिए फेविकॉल है, एंड काफ़ी सारे प्लम्बर्स के लिए एस्ट्रल है. सिमिलरली APL Apollo ने फैब्रिकेटर एंड आर्किटेक्ट्स के लिए APL Apollo स्टील ट्यूब्स कर दिया है. So guys, this was the stock analysis of APL Apollo steel tubes, and in the description below we have also posted the entire production process which is mentioned over there, along with the presentation of APL Apollo. Do let me know in the comment section कि आप कौन से narrative में believe करते हैं, whether you believe in the narrative of commodity, semi commodity or branded player, or whether you believe in the narrative of कि actually में structurally the industry has changed, and structurally what will happen is कि working capital intensity has reduced and their ROC is going to expand by a lot. So guys, thank you for joining us. Hope to see you in the next stock analysis of Apollo Tricot.